Hello everyone. So these are some question that was asked in Slate Northeast 2024 Mathematical Science Paper 2. So मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल साइट में जो आंसर की दिया है उसमें रॉन्ग आंसर की है ये सारे क्वेश्चन की. सो दीज आर सम क्वेश्चन. ओके, सो पहले से देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3. सो let the real sequence when we define as follows the step. Okay, so yn equals to root over n plus 1 minus root over n for n belongs to natural number. Then पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. ओके, सो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ए दिया है, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो वाई एन सीक्वेंस ऐसा दिया है, तो इसको हम अगर रेशनलाइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं, and which is less than equal to 1 by root over n, and by using Archimedean property we can prove that this that is root over uh, n plus 1 minus n root over n less than epsilon for all n greater than equal n greater than k. So the sequence yn is convergent, right? So yn तो converge करेगा, लेकिन what about root over n yn, ये converge नहीं करेगा, लेकिन आंसर की में दिया है बोथ convergent. So this is not true actually. So देखते हैं n times yn हमको ये मिलेगा. ओके, अगर टेक रूट ओवर, इफ यू टेक रूट ओवर then we will get this, right? Now observe that for n equals to 1 we get the value of this value is root 2. Okay, for n equals to 2 we get this value which is less than root over 2. Okay, similarly for n equal to 3 which is less than root over 3. If we take n tends to infinity we will get this value root over 1 which is also less than root over 2. Okay, so we can see or we can observe that 1 plus root over 1 plus 1 by n whole root over less than equals to this. So this is the upper bound. Okay, now we obtain that root over n times yn equals to this, and which is greater than equal to this term. Okay, and if we take k equals to 1 by 1 plus root over 2 uh, to the power 1 by 2 as a constant, then we will see that the sequence, that is root over n times yn greater than equal to k times n to the power 1 by 4. Now recall that a sequence xn of real numbers is said to be bounded if there exists a real number, say n greater than 0, such that modulus of xn less than equal to n. Okay, and we know that a convergent sequence of real numbers is bounded. Okay, now if the sequence root over n times yn is convergent then it has to be bounded, right? ये हमको पता है ये बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, सो ये कन्वर्जन नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ऑफिशियल आंसर की में ये बोथ आर कन्वर्जन दिया है, सो बोथ कन्वर्जन नहीं होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 बोला है कि द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू v1 दिस एंड v2 इन R3 इज. ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर ओनली डी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ए डी बोथ होना चाहिए. क्यों? ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन ये है, टू फैक्टर्स u and v belongs to v where v is a factor space are called orthogonal if inner product of u and v is 0. ओके, सो हम ऑप्शन ए चेक करते हैं ये होगा कि नहीं होगा. तो यार v1 ए दिया है, v2 दिस वेक्टर. ओके, सो कंसिडर कर लेते हैं कि u equal to this. So norm of u is nothing but 1. So u तो यूनिट वेक्टर होगा. Now u ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं टू द फैक्टर v1 and v2 रेस्पेक्ट में. ओके, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ u1 सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ u कॉमा v1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको 0 मिलता है. ओके, inner product of u comma v1 and similarly inner product of u comma v2 a भी 0 है. That means u is orthogonal to v1 v2 in R3. So option A is also correct. आंसर की में ओनली डी दिया है, डी भी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा. सो इन दिस क्वेश्चन बोथ ऑप्शन आर करेक्ट. ओके, नाउ
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया है दिस वन, तो बोला है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया है, इसका आंसर ए दिया है। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ए एंड डी बोथ होना चाहिए, क्योंकि हम रिकॉल करते हैं कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है ना, तो अगर उसका लिमिट अगर फाइनाइट है, दैट इज सर। ओके, सो दिस इज फ्रेडोलम इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो, इसका लिमिट फाइनाइट है ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट नंबर्स, देन इसको फ्रेडोलम इंटीग्रल बोलता है। ओके, अगर इसका लिमिट वेरिएबल टर्म में है, दैट इज ए एंड एक्स, ओके, सो इसको वोल्टेरा इंटीग्रल बोलते हैं। सो दिस इज वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, बट इसमें क्या दिया है, इसका लिमिट फाइनाइट है, राइट, इंटीग्रल इक्वेशन में, तो ये फ्रेडोलम होगा, वोल्टेरा नहीं होगा। तो डी में क्या बोला है, द इक्वेशन इज अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ये नहीं होगा, तो ए भी इनकरेक्ट है ना। तो मेरे हिसाब से ए एंड डी बोथ होना चाहिए इसका आंसर, बट ऑफिशियल आंसर की में ओनली ए दिया है, सो ए डी बोथ होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज आर ट्रू फॉर द फंक्शन डिफाइन एज दिस। ओके, तो ये एफ एक्स फंक्शन दिया है, तो बोला है कि डिराइवेबल होगा नहीं, कौन सा पॉइंट में होगा, ऐसा कुछ बोला है। तो आंसर की में इसका आंसर ओनली सी, सी दिया है। लेकिन सी कैसे होगा, मेरे को मतलब मैंने जब देखा, सॉल्व किया, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर बी होना चाहिए। सी कैसे दिया उन लोगों ने नहीं मालूम। तो एक्सप्लेनेशन, ओके, ये एक्सप्लेनेशन है, हम एफ एस को इस तरह लिख सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन राइट एफ एस इज दिस। ओके, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी का जो फार्मूला है वो तो हमको पता ही है। तो ओके, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किया अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू -1। सो हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू -1 -2, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स 0 मिला। तो ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, एंड एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट में चेक किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या मिला 0, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स क्या मिला 2। ओके, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये तो यहाँ से ऐसे भी डिस्कट हो गया। सी, सी कैसे दिया उन लोगों ने नहीं बता। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स में हम क्या बोल सकते हैं, हम ऑब्जर्व, अगर इसका if x less than -1, then fx is this, for x lies in close -1 and open 1, then x is this 2, and similarly x greater than equal to 1, this। okay, तो हमको पता है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो अदर पॉइंट में ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन x इक्वल्स टू -1 एंड 1 में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, सो इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन आंसर की में ए दिया है, तो ये भी हम क्लेम कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। इन आर स्क्वायर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है। ओके, ऐसे डिफाइन किया है, बोला कि ए इनर प्रोडक्ट होगा इफ एंड ओनली अल्फा, फॉर व्हिच अल्फा। ओके, इसका आंसर ऑफिशियल की में बी दिया है, लेकिन ये बी नहीं होगा, डी होगा। ओके, मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन, ये जो रेफरेंस है ये मैंने हॉफमैन कुंज बुक से लिया है, एक्सरसाइज में एज ए थ्योरम दिया है। ओके, तो क्या बोलता है, फॉर ए बिलो ए बी ए 2x2 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज। ओके, फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स इन आर आर टू द पावर 2x1। ओके, let f of xy with respect to a is equals to y transpose ax, so that fa is an inner product on क्या बोला है R21, right, if and only a is symmetric a11 greater than 0, a22 greater than 0 and determinant of a greater than 0। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, ऐसे डिफाइन किया था इनर प्रोडक्ट। ओके, वी कैन राइट इट इज एज दिस फॉर्म, वेयर इसमें देखो, इसमें R2x1 था, हाँ R2x1, इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है R1x2,
ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई ए एक्स ट्रांसपोज, वेयर वाई इज दिस, एक्स इज दिस एंड ए इज दिस। ओके, सो हम मैंने वेरीफाई भी कर दिया जे ए ट्रू होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके, now here equals to this matrix, that is 2 cross 2, and clearly is symmetric, right? And a11 greater than 0, a22 greater than 0, clearly. Now determinant of a is nothing but 1 minus alpha square. Now अगर a इनर प्रोडक्ट होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 वी गेट दिस। so So now back to the question. So this is inner product if and only if modulus of alpha less than 1. Okay. So this is the explanation by the prison. Okay. So इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ये बी नहीं होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 93। इसका आंसर ऑफिशियल गेम है सी दिया है, लेकिन इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। मैंने सॉल्व किया था तो मेरे को कोई भी आंसर नहीं मिला इसमें से। ओके, तो इंटीग्रल एक्सट्रीमल क्या बोला, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल ए इंटीग्रल इक्वेशन दिया है व्हिच सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन दिस। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पर एफ ए है। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन जो दिया है ना वाई एंड जेड टर्म में, दो वेरिएबल में दिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लैग्रेंज थ्योरम से, with respect to y and with respect to z। ओके, तो इसको सॉल्व किया तो z इक्वल्स टू वाई डबल डिश मिला, y इक्वल्स टू z डबल डिश मिला, 1 एंड 2 को कंबाइन किया तो हमको ये मिला, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं है, एंड m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई मिला। तो zx क्या होगा, zx ए होगा, अगर zx इफ इट इज zx, और zx क्या था, zx इज नथिंग बट y डबल डैश। ओके, एंड y इज नथिंग बट z डबल डैश, तो यहाँ से y भी मिल जाएगा। एंड बाउंड्री कंडीशन दिया था y 0 इक्वल्स टू 0, y पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू z 0 इक्वल्स टू 0, z पाई बाई 2 इक्वल्स टू -2। सो बाउंड्री कंडीशन पुट करके हमको कांस्टेंट a मिला, एंड फर्दर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट c 3 इक्वल्स टू 0। again y pi by 2 equals to 1 and z pi by 2 equals to -2। इसको पुट करके क्या मिला, ए इक्वेशन 5 मिला एंड इक्वेशन 6, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग मतलब 6 माइनस 5 करने से c4 इक्वल्स टू -3/2 ये मिला। ओके, एंड फ्रॉम 3 वी गेट c1 plus c2 equals to 0, which implies c1 equals to -c2। ओके, नाउ सब कुछ जो कुछ भी मिला 5 में पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद ए मिला। ओके, एंड वी ऑलरेडी गेट c1 इक्वल्स टू -c2, तो एक कांस्टेंट यहाँ पुट करने के बाद हमको ए मिल गया c1, उसके बाद c2 ए मिला, उसके बाद c1 c2 वाई एक्स में पुट कर दिया, हमको ए मिला, एंड जेड एक्स ए मिला। ओके, एंड नाउ कम बैक टू द ऑप्शन। ऑप्शन में क्या बोला था, क्या निकालने बोला था, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, राइट। तो देखो वाई माइनस जेड कैलकुलेट किया, हमको 3x मिला, जो कि ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा था। मतलब ऑप्शन में क्या दिया है, इसमें क्या आया है, कोई आता पता ही नहीं है। एंड वाई प्लस जेड इसको ये मिला, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये एम होना चाहिए। सो दीज आर सम क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आंसर की में गलत दिया है। थैंक यू।